I'm re- Not a problem. Good evening to everyone. Not a problem, Paramita. I'll share you the complete link. It's already there on net, so you can take it from playlist. I'll share that playlist link. Yes, yes, yes. You have shared me that a complete list is there day Right, right, wise. right, right, right. So Yes. you can check that. So that's not an issue. Yes. Okay. So one important thing that I want to say, guys, few of you, as you might have seen, Mr. Babaditya has sent a message in the group saying that few of the guys are not submitting their attendance on PSA website. So please do the needful because it is going to affect your performance or your certification when certificate will be issued from NSDC, which is Government of India National Skill Development Corporation, right? So make sure that you guys fill it up and complete the process and hand it over to them. Reason is I am not connected with them in terms of attendance and all. So you guys have to take care of yourself and coordinate with them so that it is not going to affect. At least the guys who are punctual, they should not be affected. People who are not punctual, we can't say anything to them. But still communicate it so that I'm like not going to affect you guys. I felt that there are guys who are attending regularly. Their names were also striked off in that list. So वहाँ पे भी orange mark था. Few of the students who are participating, but still, right? तो थोड़ा सा उन चीज़ों को देख लो because that is going to affect if you are not submitting it on time, and then getting certificate on completion will be sometimes difficult. Right? So okay. So shall we have any examination after the Yes, course? yes, there will be examination Oh, there. That's the reason it is. That's the reason it will be MCQ, mostly MCQ, multiple choice question. I have already groomed you guys topic by topic. I have already groomed what could be the probable questions, but I'll try to explain based on the questions as well. But there will be MCQ questions, and then followed by that, some assignment will be given. The way I'm like, it won't be tough for you guys because you guys are doing the assignments like very regularly. It won't be tough, but at least for examination point of view and all, you may have to fulfill that. Okay. 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 All right. So what's up? कुछ वीकेंड पे कुछ किया आप लोगों ने या एंजॉय किया? क्या हुआ? कुछ हुआ? आगे बढ़े? कुछ नई चीज, कुछ आउटस्टैंडिंग जो छूट गया था, कुछ चीजें आप लोगों की प्रैक्टिस में कुछ आप लोग किए, या फिर मैं लिंक्डइन को कंप्लीट करूं और आगे बढ़ जाऊं? So I'll give few minutes over here in case anyone among you have some questions on पहले का जो भी कर चुके हो उसमें अगर कहीं पे आपको दिक्कत हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आप पूछ लो so that we'll finish it off and then proceeding forward. नहीं है तो भी बता दो so that I'll move on. Sir, हाँ hello sir, it's Anakshi. हाँ If there is a new Twitter account, we cannot advertise through it. It requires 15 days or 30 हाँ, days. correct. That's correct. Twitter has certain limitations. Right? Because I have forgotten my beforehand Twitter account password. So अच्छा. when I have created the new one with the page, Why you created new one? You could have reset the password. It could have gone. no, because it was in Yahoo Mail and I Achha. haven't checked Yahoo Mail and it was wholly deleted. All the Yahoo Mail over was there. Right. So Yahoo Mail is now showing all this thing that empty inbox. Right. and You might that have what not is- logged in. Yeah, you might not have logged in since quite long time. So I have to make a new account, and after that, it is shown that your Yeah, you have to account go is not eligible for the password for the promotion, advertisement, for the advertisement. advertisement. Yeah. Hmm. It takes a little time. I think yes, you rightly said it takes 2 days, 2 weeks time at least. 2 weeks. 2 weeks Okay. time. After that, I can do it. Yes. Right? So what you have to do during 2 weeks, you keep posting something or other, and then keep following people so that it looks that it's not very raw. You are active on LinkedIn, sorry, on Twitter. Because what happens, even on Facebook, if you are very new on a Facebook, you can advertise, but still sometimes it takes longer time. Sometimes your ad rejection will be more. If you don't accept the policies and all, there is a chance that your ad will, account will go on hold.
So those kind of things, or sometimes it goes on temporary hold. You have to submit your ID and all. If it is very new, and then immediately you start publishing it, right? So what you do when you have already created either on Instagram, Facebook, Twitter, any social media platform, try to publish, submit, or follow, do something or the other regularly. Okay. Right? No. Anyone else has anything to ask? All right, guys, not a problem. So we'll move on to the little new, but okay, interesting topic. So you are able to see my screen? Yes, sir. Optimize LinkedIn profile. Am I correct? Yes, sir. Right. So, Yes, sir. right. So all of you aware of LinkedIn? LinkedIn, again, a social networking site, but a professional networking site. Okay. So same way, we have to create our username, password, the way that we created for other social media platforms. Same way we have to do, but I'll go a little forward in terms of when you are creating it or when you are optimizing it, what are the important things that you have to take care. So first and foremost thing is like LinkedIn is basically a professional networking website or social media platform. The moment we say professional, mean to say we have to be very serious. Most of the time we cannot post unlikely on social media. On Facebook you post when you went on the trip, you also post that. When you are outing with the friends, you also post that. When you are in the marriage party, you also post those kind of images and all. Unlikely on LinkedIn, even whether it is a personal profile page or business profile page, you are not supposed to post all these kind of things, jokes, chutkulas, any raw kind of argumentative political news. So these things you should avoid it. It's not that you cannot post it, but people don't like it. इसका ऐसे एग्जाम्पल है कि अगर आप बंगाली मूवी देखने जाओ और थिएटर के अंदर इंग्लिश मूवी चलने लगे तो आप इरिटेट हो जाते हो, या इंग्लिश मूवी देखने गए वहां पे उड़िया मूवी चलने लगी या फिर तमिल मूवी चलने लगी, तेलुगु मूवी चलने लगी, यू गेट इरिटेटेड एंड वी केम हियर फॉर समथिंग एल्स बट समथिंग एल्स इज हैपनिंग, राइट? तो उसी तरह से लिंक्डइन पे जो लोग आते हैं वो एक प्रोफेशनली नेटवर्क कनेक्ट होने के लिए आते हैं, and they exchange their professional relation rather than exchanging their personal relation, right? सोशल मीडिया पे जब आप फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे आईडीज बनाते हो तो देयर इज अ नो लिमिटेशन. यू कैन पोस्ट कैजुअल इमेजेस, you can post any kind of goodies or some kind of iconic images and all, you can post it. Whereas on LinkedIn, it's always advised to have a properly dressed photograph as your profile pic. So that is rule number 1. Second, even if you create with any profile, any image, but you get an option, sorry, you get an option to edit it. The way on a Facebook, you get an option to click on the photograph and then you can edit it. Similarly, you will get an option over here to click it and then you can edit it, right? So edit button is there. So you go there, you edit it, and then your profile will be eligible for changes. You make the changes and save it. It will be saved. Okay. Now, next important thing, once you are done with the profile photograph change, right? You get an option to upload photograph. In case you have on your desktop or on your mobile, you can do that. Or in case you are not having it, you click it and then you can upload it. Similarly, you also get an option to upload other files. And these files could be in image format, in Word document format, in PDF format, in PPT format. You can upload many other files in your profile. So that's also we are going to see.
but for image it has to be in JPG, and that too not very not very high density images. It has to be neat, clean, but at the same time little light so that it accepts. Now you can see over here the name of the person is Ali Ashley now, and then followed by whatever there in the box. These are their, these are her skill sets. So what LinkedIn we suggest when you are creating profile on LinkedIn, it's not only name and designation that matters. What matters most is the skill that you carry, because people will be searching based on the skills, not based on the name. People will be searching based on your company, based on skills that you carry. Say you are a sales professional, so people might be searching for sales professional with 5 years plus experience, and you are having that, it matches with your profile will result in search result of LinkedIn profile page. Similarly, if you are a social media person with the 2 years of experience or 3 years of experience, someone wants to get connected with that kind of people, they will search those skill sets and they will find your CV and they will reach, right? So what it is written, grab attention with your profile headlines. So after name, whatever it is there in the box, it is called profile headlines. So you have to make it so beautiful that no one is, yes, people are interested in CEO, director, manager and all, but on top of it, they want to see for which, what kind of profile you carry. किस डेजिग्नेशन पे आप हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या स्किल सेट्स are. सो आप अपने प्रोफाइल के हेडलाइन को इतना अट्रैक्टिव बनाओ कि लोग आपके प्रोफाइल के हेडलाइन को देख के आपसे कनेक्ट हो, ना कि आपके नाम या फोटोग्राफ से, राइट? सो हेडलाइन क्रिएट्स वेरी मेजर रोल. अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो उस तरह के लोगों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एचआर रिक्रूटर्स जो होते हैं वो आपके इसी प्रोफाइल हेडलाइंस को देखते हुए आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं. फर्स्ट लेवल यहीं पे शॉर्टलिस्टिंग होती है, उसके बाद अंदर जाते हैं. ओके, सो यू शुड यूज इट वेरी प्रॉपरली, राइट? अब हेडलाइंस कैसे बनाना है उसके लिए यहाँ पे टिप्स दिया गया है, राइट? योर हेडलाइन इज अ डिफॉल्ट योर करंट पोजीशन. डिफॉल्ट जो होता है यानी व्हेन यू क्रिएट अ लिंक्डइन प्रोफाइल, वहां पे ऑटोमेटिकली आपसे जो कंपनी और पोजीशन पूछते हैं वो वहीं आ जाता है. बट you also get an option to edit it, and once you edit it, it will be edited. So there is a no hard and fast rule कि once accepted that will be there only, you can edit it, right? उसी तरह से आपको ये कहा जाता है कि you use attractive symbols like tick mark. You can see over here in the profile what I have shown you. You can see tick mark. There is a finger, right? So these kind of things are there. So you can also use any kind of, but avoid using smileys. Some kind of caption based symbols are there, you try to use that. ठीक है, उसी तरह से उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो आपके प्रोफाइल से मैच करता है उसको आप डालिए वहां पे. ओके, एंड देन you can also be resourceful and try to find tools to help you find you out. In the sense, आप क्या करें, आप लिंक्डइन पे जाके आप आपसे रिलेवेंट इंडस्ट्री के लोगों के प्रोफाइल को सर्च करें विद कीवर्ड्स. Say for example someone is beautician, right? You can say beautician in Kolkata करके आप सर्च करो and then you will be able to find some of the profiles. Then आप देखिए कि जो प्रोफाइल रैंक कर रहा है वो किस तरह का अपने प्रोफाइल हेडलाइंस यूज किए हुए हैं. उसी तरह से जैसे कंप्यूटर रिपेयर वाले हैं, आप कंप्यूटर रिपेयर सेंटर इन कोलकाता, इन हावड़ा, इन हुगली, जो भी आपको सर्च करना है आप सर्च कर सकते हैं, right? And then you try to see. Similarly, if you are a trainer, you can search for digital marketing trainer in Kolkata and then see what kind of headlines people are giving along with their name and other things, and then you try to put that way. Okay? तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हेडलाइन के लिए है. अब हेडलाइन को जब आप हेडलाइन को आप एडिट कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया, आप पीछे आपने देखा कि फोटोग्राफ्स को एडिट करने के लिए आपको once you update it, it gives you an option of edit, you go there and edit it. सिमिलरली जब आप लिंक्डइन के अकाउंट में लॉग इन करेंगे तो वहां पे एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आता है एंड देन यू एडिट इट. वंस यू एडिट इट, आपका सारा चीज एडिट हो जाता है एंड देन यू सेव इट. यू कैन ऑल्सो गो इन अ न्यू ब्राउजर एंड सी कैसा आपको एंड यूजर्स को कैसा दिखेगा. देन नेक्स्ट ऑप्शन इट कम्स कंप्लीट योर एक्सपीरियंस सेक्शन.
जितना भी एक्सपीरियंस है आपका, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, एक कंपनी में है या 5 कंपनी में है, you try to update it actually what you are going to write in your CV. Don't write different in your CV and different in your LinkedIn profile, because in current scenario, recruiters, HR managers, recruitment agencies, they receive your CV and then they try to see whether it is matching with the LinkedIn or not. If it is not matching, then first level of rejection happens over there only. राइट तो आपको जितना एक्सपीरियंस है, एक कंपनी का है, 2 कंपनी का है, जब आपने छोड़ा है, जब आपने ज्वाइन किया है, वो सारी चीजें एट ए टाइम for a people who are running multiple businesses or having multiple positions and they can showcase, वो openly लिख सकते हैं, तो it also gives you an option that at a time you can have 2 to 3 positions that you are working for, but किसको आपको highlight करना है, that you get an opportunity. Out of 3 you want to highlight 1, you will get an opportunity to highlight that. ठीक है, तो आपको एक्सपीरियंस आपको एक्सपीरियंस अपने मेंशन करना है, एंड एट द सेम टाइम यू आल्सो हैव टू यूज कीवर्ड, जैसे हमने प्रोफाइल के अंदर कहा, प्रोफाइल हेडलाइनर्स के अंदर कहा कि आपको कीवर्ड्स यूज करना चाहिए, वैसे ही आपको यहाँ पर भी कीवर्ड्स यूज करना चाहिए. ओके, देन नेक्स्ट आता है, उसी चीज को है कि एक्सपीरियंस को कैसे, एक्सपीरियंस कौन से सेक्शन पे आता है. तो जैसे ही आपके ऊपर का ये सेक्शन आप देख रहे हैं, जैसे ये लेडी का फोटोग्राफ है और यहाँ पे ये सारा डिटेलिंग है, उसके बाद एक्सपीरियंस का आता है, उसी के पास आएगा ऐड ए पोजीशन. वो आप पोजीशन ऐड करते चले जाएं. जिस पोजीशन को आपको डिलीट करना है आप डिलीट कर दें, जिस पोजीशन को आपको एडिट करना है आप एडिट कर लें, किसी को ऊपर करना है, किसी को नीचे करना है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं. इफ यू आर वर्किंग एट ए टाइम इन 2 डिफरेंट कंपनीज और रनिंग 2 डिफरेंट बिजनेसेस, सो यू कैन डू दैट. बट जो कंपनी आप पहले 2016 में छोड़ चुके हो, वो सीक्वेंस में अपने आप वहां चला जाएगा, उसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, राइट. एंड देयर यू आल्सो गेट एन ऑप्शन कि उस पर्टिकुलर पोजीशन से रिलेटेड अगर आपका कोई पीडीएफ है, पीपीटी है, कोई डॉक्यूमेंट है, कुछ भी है आप अपलोड करना चाहते हैं, यू हैव सर्टेन अचीवमेंट, उस कंपनी में रहते हुए आप बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी का अवार्ड है या कुछ भी है, तो आप वहां पे अपने एडिशनल इंफॉर्मेशन और एडिशनल कंटेंट और इमेजेस को भी आप अपलोड कर सकते हो. Whatever going to add value to your CV, curriculum vitae, or for employment, or for opportunity, or business opportunity, you try to upload it. ठीक है. अब नेक्स्ट आता है, जैसे आपने देखा होगा फेसबुक में प्रोफाइल का URL होता है, facebook.com/rcreations करके एक आया था, किसी का आया कंप्यूटर रिपेयर का आया, किसी का वही क्या नाम है, होम पेंटिंग वाले का है. तो जैसे ऊपर आपका नाम आ जाता है ना, तो लिंक्डइन में भी आपको ऑप्शन देता है कि जो नाम आप कस्टमाइज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बिकॉज डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली लिंक्डइन गिव्स यू linkedin.com/ for example my name is Shakir Ali, it will give Shakir Ali -124896, something like that. So what you have to do, you go and edit it and you are supposed to put a name. As we know, email available रहता है तो green आ जाता है, यूजर नेम अवेलेबल रहता है, green मिल जाता है. Similarly, if that name is available, it will be accepted and then you submit it. Now, advantage with this is you will be able to find this. You will be able to find this in Google search result also. जब Google में कोई सर्च रिजल्ट करता है ना, तो आपको वहां पे भी इसका प्रोफाइल मिलता है. मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूं so that you can understand it. Just allow me for a minute. Hello. Good evening, sir. Actually, I cannot join because of issue. Not a problem, sir. We'll see. Now, sir, it is resumed now. Yeah. Okay, sir. Not an issue. Right, guys. So as you can see over here, I search. Are you able to see LinkedIn screen? Google screen. Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने यहाँ पे सर्च किया शाकिर अली डिजिटोज, या चलो भाई अगर मैं डिजिटोज भी सर्च करता हूँ तो भी देख सकते हैं. ठीक है, आप ये देखो, जैसे मैंने डिजिटोज सर्च किया है तो डिजिटोज इज व्हाट माय कंपनी नेम.
So what is first is my website which is coming. Second, what it is coming? ये क्या आ रहा है? दिखाई दे रहा है आप लोगों को? LinkedIn profile. LinkedIn profile. That's what. Yes, sir. That's what. मैं वही कह रहा था, जैसे अगर हम अपने प्रोफाइल को सही से ऑप्टिमाइज कर लेंगे, वहां पे सही से कीवर्ड यूज करेंगे, तो क्या होगा हमारा? वहां पे लिंक्डइन के अंदर वो पर्टिकुलर लिंक्डइन का पेज आपको बहुत अच्छे से रैंक करता है। नेक्स्ट क्या आ गया? यूट्यूब आ गया। फिर आगे हम जाएंगे तो फेसबुक का पेज आ गया। फिर उसके बाद और भी चीजें आ रही हैं, राइट? सो इफ you optimize proper things, probably it will be better for us to understand. उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे अपना नाम सर्च कर लेता हूँ, let's see, there is a possibility, चूंकि शाकिर अली के नाम से बहुत सारे लोग हैं, हम देखेंगे कि हमारा नाम आ रहा है या क्या। हाँ, देखिए आप, ये यहाँ पे क्या है, ऊपर के गूगल स्कॉलर है, वो सारी चीजें हैं अपनी जगह है, बट यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ गया? यहाँ पे ये लिंक्डइन का आ गया ना? आर यू एबल टू सी? Sir. Yes, sir. लिंक्डइन का आया। अब देखो लिंक्डइन के बाद जो यहाँ पे आ रहा है, जो इधर की तरफ आ रहा है, आप देखो लिंक्डइन का लिंक पढ़ो, in.linkedin.com, फिर है शाकिर अली डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मीडिया ट्रेनर, राइट? सो दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर हम अपने लिंक्डइन के यूआरएल को अगर हम प्रॉपर नेम देंगे तो गूगल में वो लिस्टिंग दिखा देता है, समझ रहे? सो दिस इज व्हाई, दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि हमको अपने लिंक्डइन के पेज को ऑप्टिमाइज करना है, लिंक्डइन के लिंक को ऑप्टिमाइज करना है, एंड देन वी कैन एक्चुअली मैनेज आवर दैट पर्टिकुलर पेज विल बी विजिबल इन गूगल सर्च रिजल्ट। तो अल्टीमेटली हम लोग सारा का सारा काम किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हमारा ज्यादा से ज्यादा लिस्टिंग आए, ज्यादा से ज्यादा रैंकिंग आए, पॉपुलैरिटी आए और लोग हम तक डायरेक्टली पहुंच सके। तो सबसे पहली चीज ये है कि अगर हम सही ढंग से यूआरएल अगर अपना ऑप्टिमाइज करेंगे, यानी कि अपने प्रोफाइल का एक सही नाम अगर देंगे, तो अगर कोई हमारे नाम से या डेजिग्नेशन से या कंपनी से कोई सर्च कर रहा है या कीवर्ड से सर्च कर रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी हमारा नाम, लिंक्डइन का पेज हमारा गूगल में परफॉर्म करेगा। दूसरी चीज क्या कर रहा है, aside from that you can also easily add it to your email signature। आप क्या कर सकते हो, आप जो अपना जो पर्सनल ईमेल आईडी है, आप उसके अंदर इस पर्टिकुलर लिंक को ऐड भी कर सकते हो, सो दैट इफ समवन वांट्स टू नो मोर योर पर्सनल अकाउंट, तो उसको जैसे ही क्लिक करेगा उसको आपका प्रोफाइल पता चल जाएगा। ओके, सो दिस हेल्प्स टू गेट new businesses or new employment opportunity. You will get either new business opportunity or employment opportunity, right? Next क्या है, ये कहा जाता है how to customize your public profile URL, that we have already discussed, कि हम अपने जो भी LinkedIn जो भी हमको प्रोफाइल देता है वहां पे जाके हम एडिट कर सकते हैं। कैसे एडिट कर सकते हैं वो एक एक करके मैं दिखाऊंगा आपको, मैं अपने ही प्रोफाइल पे आपको दिखाऊंगा, so that you will be able to see that। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि आप अपने पब्लिक प्रोफाइल, जैसे मैंने कहा कि पब्लिक प्रोफाइल, और इसको आप फ्रीक्वेंटली भी चेंज कर सकते हो, बट वी एडवाइज नॉट टू डू दैट, बिकॉज एक बार गूगल ने एक लिंक को एक्सेस कर लिया, लिस्ट कर लिया, आप फिर जाके उसको चेंज करोगे तो क्या होगा कि वो पेज अवेलेबल नहीं दिखाएगा। सो पीपल विल फील दैट ओ योर प्रोफाइल इज नॉट देयर, राइट? सो डोंट मेक चेंजेस फ्रीक्वेंटली, बट यू कैन डू दैट over a period of time you want to do it, you can do it. So it is available for public and you can do that. Next क्या आता है, आप अपने पर्सनल और कंपनी वेबसाइट को भी अपडेट कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल द कंपनी वेयर यू आर वर्किंग, आप वहां पे अपना डेजिग्नेशन और कंपनी नेम डालते हो, वहां पे कंपनी का आप यूआरएल डाल सकते हो। अगर आपका अपना कोई पर्सनल ब्लॉग पेज है, जैसे आप लोगों ने विक्स पे बनाया है या फिर गूगल माई बिजनेस पे बनाया है, उस तरह के पेजेस को भी अगर आपको ऐड करना है तो आप वहां पे भी अपने पेजेस को ऐड कर सकते हो। जहां आप करेंटली एम्प्लॉयड हो उसका भी वेबसाइट ऐड कर सकते हो, और आप अपने पर्सनल ब्लॉग पे पेजेस को भी ऐड कर सकते हो, राइट? सो यू ओनली गेट एन ऑप्शन टू अपडेट करंट जो आपका एम्प्लॉय है, जहां आप जॉब कर रहे हो, जहां एम्प्लॉयड हो, उसका आप कंपनी वेबसाइट अपडेट कर सकते हो। पर्सनल यू कैन चेंज इट एज मच एज यू वांट, बट ऑफ कोर्स आपका ब्लॉगिंग लिंक एक होगा या आपका पर्सनल वेबसाइट का लिंक एक होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, आप न सिर्फ अपनी कंपनी, ना सिर्फ कंपनी के जहां आप एम्प्लॉयड हो वहां कंपनी का वेबसाइट डाल सकते हो, पर्सनल कंपनी का पर्सनल वेबसाइट डाल सकते हो,
आप ब्लॉग वेबसाइट डाल सकते हो. सो यू गेट मेनी ऑप्शंस टू चूज. ये पर्सनल है, ये आउटसोर्सिंग का है, ये क्या है. यू गेट मेनी ऑप्शंस टू ऐड. सो ये जब आपको मल्टीपल ऑप्शंस, आप अपने फेसबुक का भी जो है वहां पे ऐड करना चाहो तो आप अपने फेसबुक का ऐड भी कर सकते हो, राइट. तो आप अपने सोशल प्रोफाइल को भी ऐड कर सकते हो, आप अपने बिजनेस प्रोफाइल को भी ऐड कर सकते हो, राइट. So this gives you an option for a business owner entity to validate about you in detail. जब सामने वाले को, the person who wants to contact you understands all aspects of you, then there is a possibility of much better transaction to happen in a business, or HR recruiter may find you suitable and they will be able to reach you. Okay. ये फिर से वही आ गया है कि अगर आपने चाहा कि कुछ और चेंजेस करना है, यू कैन गो बैक, यू कैन मेक द चेंजेस, यू गो देयर, यू ऐड अ वेबसाइट, और यू वांट टू डिलीट द वेबसाइट, यू गो टू योर प्रोफाइल, यू कैन डिलीट द वेबसाइट. ओके, ये हो गया. नाउ अब उसके बाद आता है कि समरी अबाउट योरसेल्फ. यू आल्सो गेट एन ऑप्शन टू राइट अ समरी अबाउट योरसेल्फ. 200 वर्ड्स का पैराग्राफ है, 200 वर्ड्स है, 300 वर्ड्स है. You get an option to write a summary about yourself. Not only because CV में आप थोड़ा थोड़ा लिखते हो कि इस कंपनी में काम कर रहे थे, ये आपका जॉब रोल है. Whereas जैसे कोई कंपनी आपसे पूछती है जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, tell me something about yourself. So what all you want to mention over there, apart from your name and qualification, you want to mention about your co-curricular activities, your outstanding speaking ability, your hobbies, something that you have achieved in the past, something that you are currently engaged in as a social development programs and all. So anything and everything that you want to write about your professional achievement which is not coming under job or employability options, you can write in your summary. It has to be professional, related to professional, what helps as a professional. For example, you have written a book, you can write over there. You can mention over there. You have written some articles or journals which is being published in some newspaper, you can mention over there, right. तो इस तरह के स्पेशल अचीवमेंट्स को आप अपने समरी के अंदर मेंशन कर सकते हो, राइट. डोंट फॉरगेट टू स्टिल मेक इट लुक क्लीन एंड यूज बुलेट टू मेक इट हाईलाइटेड, राइट. सो ऐसा ना हो कि आप लिखते चले गए एंड देन इट्स मेंट फॉर यू एंड यू फेल्ट दैट इट इज गुड. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स ऑलवेज गुड इन प्रोफेशनल approach. You are supposed to use bullet points rather than having a story written, right. तो ये थोड़ा सा है. और आपको ये भी देखना पड़ेगा, ये यहाँ पे जो भी लिख रहे हैं वो वैसे स्किल्स से कनेक्टेड होना चाहिए which actually helps to acquire either business or employability, right. And last but not the least, you should get noticed by people. Oh, you are something special, right. So वो आपको देखना पड़ेगा. ये उसी का स्क्रीन है कि कहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हो. उसके बाद आपको आता है कॉल टू एक्शन बटन्स. इन द सेंस आप अपने ईमेल आईडीज भी मेंशन कर सकते हो, फोन नंबर मेंशन कर सकते हो, अपना पर्सनल वेबसाइट वहां पे मेंशन कर सकते हो व्हेन यू आर फिनिशिंग योर समरी पैराग्राफ. ओके, तो आपको कॉल टू एक्शन, बिकॉज इफ समवन इज रीडिंग इट एंड ही वांट्स टू रीच यू डायरेक्टली, अब वो आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी कहीं और जाके ढूंढे. इट्स बेटर दैट यू राइट इट इन समरी so that people will be able to see that. There are many more to be discussed on LinkedIn. Whatever you can imagine, everything is available over here, right. So as we have seen that जो आपका current employment है या past employment है वो आपने mention किया. Next important thing which is coming as organizations. In case you are connected with any organization, जैसे लायंस का है या कोई NGOs है या कोई भी और भी ऑर्गेनाइजेशन है इस टाइप का, कॉलेज में है, अपनी कंपनी में है या अपनी सोसाइटी में है, you can write about it. In case you got some certifications or some honors or some degrees and all, you can upload it over here. If you have a QR code or some validation numbers available, you can upload it over there. आपने अगर कोई ऑनलाइन सर्टिफिकेशन किया है या ऑफलाइन किया है, जो भी किया है आप वहाँ पे कर सकते हैं. Similarly, there are some of the tests also available if you have already scored some tests, जैसे जावा वाले होते हैं, PMP वाले होते हैं, या फिर
और भी टेक्निकल या दूसरे प्रोफेशनल वाले होते हैं, अगर उनका कोई टेस्ट है जो कि उन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है, उसके बारे में भी मेंशन कर सकते हैं, राइट। Similarly, you can add any other courses that you have taken. You can add about patents that you have. You can add about certifications that you have achieved. You can add about volunteers. If you are volunteer for a particular group or doing some social cause activity, you can mention everything, whatever you want. You can mention it in complete detail. Someone is asking something because it was not audible to me. Anyways, then it comes, you get an option for skill and experience. You can add your own skill that you are so and so, and people in your network will endorse that yes you are you. They will acknowledge, okay fine, yes he is a project management certified, yes he is a beautician, yes he is an architect, yes he is a dramatician, whatever it is, or on a technical ground, or on a project management, or team lead, or a business orientations, right? So you may add multiple skills on your profile, and other people will actually endorse it. So whoever will endorse, their image will appear like this, as you are able to see. That also I'll show you how we can see it. But this is also very important aspect. You have to add multiple skills. Now, the moment you add skills and someone is searching a profile based on skills, your profile will pop up. Then it comes, of course, editing and adding new skills. If you want to remove some of the skills, you can over a period of time. You want to add a new one, you can do that. And then people will start endorsing. Endorsing means, say for example, I have mentioned digital marketing or search engine optimization in my profile. Someone who knows me, he will actually say, yes, I know this person and I endorse that he is a search engine optimizer. So the moment he endorses it, it is authentic, because unlikely on any other platform, someone else cannot write a review unless until वो जब की लिखेगा नहीं या क्लिक नहीं करेगा तब तक ये अपीयर नहीं होगा. So you cannot do it on others behalf. Okay, so this looks very authentic, and इसी वजह से जो कंपनीज हैं रिक्रूटमेंट के लिए रिसोर्सेज देख रही हैं या फिर बिजनेस के लिए डिसीजन मेकर्स को चुनती हैं, they actually see all these things that when they are talking to someone whether he is really a qualified person or not, right? उसी तरह से नेक्स्ट आता है recommendations. Recommendations is basically testimonial from the people या जिसके साथ आप काम कर चुके हो, या जिसके लिए आप काम कर चुके हो, या जिसके साथ कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्मेट में कनेक्टेड होंगे, राइट? सो यू विल रिक्वेस्ट देम टू राइट ए endorsement, write some testimonial about you, and whatever they will write as is, it will get published. You cannot edit it. You only get an option not to publish it, but you don't get an option to edit it, right? तो अगर आपके बारे में कोई अच्छा लिखा है तो एज इज अच्छा आ जाएगा, अगर बुरा लिखा है तो आपके पास ऑप्शन होता है डोंट पब्लिश इट. सो दैट्स ओनली द केस, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट लाइक दैट. सो व्हाट हैपेंस, so people will write endorsement, and these endorsements are very very powerful when you acquire job or when you acquire new businesses. Because ask your clients or ask your seniors or peer level, your colleagues, to write review about you on LinkedIn, and it helps. अब नेक्स्ट क्या आता है, जब आपने अपना पर्सनल प्रोफाइल बना लिया तो अब आपके पास ऑप्शन आता है कि आप कंपनी का प्रोफाइल भी बनाएंगे. तो जैसे आपने फेसबुक में देखा कि आप अपना पर्सनल प्रोफाइल बनाए, उसके बाद राइट साइड में जाते हैं, वो क्रिएट ए पेज होता है, आप पेज क्रिएट कर लेते हैं. उसी तरह से यहाँ पे क्रिएट ए पेज नहीं होता, ऐड ए कंपनी होता है. आप जब वो करेंगे तो वहां पे कंपनी इंफॉर्मेशन के बारे में पूछेगा और वो सारी चीजें पूछेगा, एंड देन यू हैव टू अपलोड योर कंपनी इंफॉर्मेशन. उनका जो है गूगल पेज क्या है, फेसबुक पेज क्या है. सो यू हैव टू ऐड ऑल दीज थिंग्स. सो नटशेल में अगर हम लोग बात करें तो ये आपके पूरा का पूरा प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन आपको अपडेट करने का वेबसाइट है. अब जब कंपनी पेज आप बना रहे हैं तो वहां पे कितने साइज का इमेज यूज करना है हम लोगों ने देखा था. जैसे फेसबुक का आइकॉन यूज कर रहे थे 170 बाय 170 था. कल परसों अभी जो फ्राइडे को हम लोग ट्विटर देख रहे थे तो 400 बाय 400 के आसपास का था.
LinkedIn give you little better opportunity to upload it in 700 pixels because यहाँ पे आप थोड़ा सा प्रोफेशनल फोटोग्राफ आप अपलोड कर रहे हो। उसके बाद आपको ये कहते हैं कि भाई आप अपने कंपनी का लोगो और ब्रांड जो भी है, लोगो आप अपडेट करो, हेड ऑफिस अपलोड करो, अपडेट करो, एंड द पीपल हु आर वर्किंग इन योर कंपनी ट्राई टू अपडेट देम एज वेल। उसके बाद आप इस पर्टिकुलर पेज को किसी को भी डेजिग्नेट कर सकते हो एज एन एडमिन और टू मैनेज योर पेज, बिकॉज इन कॉर्पोरेट्स देयर आर मल्टीपल पीपल वर्किंग, सो इफ यू वांट टू डेजिग्नेट इट, आप किसी को ये जिम्मेदारी देना चाह रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाह रहे हो, so you can also designate it by providing them to manage the profile page. Okay, so you get an option and then यहाँ से आप ऐड करते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे कहा गया try to use square image if possible। अब ये जैसे आप देख, ये आपको अभी तक जो है आप इसके बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, लिंक्डइन के बारे में हम लोग पढ़ते चले जा रहे थे। नाउ आप आगे अगर देखिएगा तो ये थोड़ा सा आपको यूट्यूब चैनल्स के बारे में भी आपको अपडेट कर रहा है कि कितने तरह के, अब जो है हम लोग यूट्यूब चैनल भी एक छोटा सा एस्पेक्ट है जिसको कि हम थोड़ा सा कवर कर रहे हैं, बट इन डिटेल विल बी डिस्कसिंग इट लिटिल लेटर, कि यूट्यूब के अंदर भी बहुत, जैसे आप लिंक्डइन में अपना पेज बनाए हो, कंपनी पेज बनाए हो, उसी तरह से यूट्यूब के ऊपर भी आपको ऑप्शन आता है कि यू कैन क्रिएट योर चैनल। टू क्रिएट ए चैनल ऑन यूट्यूब व्हाट यू हैव टू डू, आपको सबसे पहले जीमेल अकाउंट होना जरूरी है। जब आप YouTube चैनल क्रिएट करेंगे तो वो आपसे आपके कंपनी का नाम, आपसे लोगो और वो सारी चीजें आपसे पूछता है, एंड यू हैव टू अपलोड दैट। वंस यू अपलोड इट, इट विल आस्क फॉर द बैनर, इट विल आस्क फॉर द फर्दर डिटेल्स। तो जो आपने बैनर्स क्रिएट किए हुए हैं वो बैनर्स यूज कर सकते हैं। अगर आपको वो बैनर नहीं मिल रहा है तो आप लोगों के पास कैनवा का अकाउंट है, आप कैनवा के अकाउंट में जाके यूट्यूब बैनर का एक ऑप्शन आएगा, जैसे फेसबुक बैनर का ऑप्शन आता है वैसे ही यूट्यूब बैनर का ऑप्शन आएगा, आप वहां पे जाके अपने यूट्यूब का बैनर बना सकते हैं और उसको आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं अपलोड करने के बाद जैसे आप लोगों को हर दिन एक लिंक भेजता हूँ लेक्चर का, उसी तरह से आप अपने वीडियोस को अपलोड करके उसको पब्लिसाइज कर सकते हैं। अब जब आप इसको क्रिएट करते हैं तो क्या मतलब, जैसे मैंने कहा कि यूट्यूब पे आपको जाना है, विच इज ओवर है, उसके बाद आपको साइन इन करना है या साइन अप करना है। साइन इन किसको कहते हैं, आपके पास जीमेल अकाउंट है तो आप साइन इन करोगे, आपके पास नहीं है तो आप साइन अप करोगे। ओके, फिर उसके बाद आपको स्क्रीन्स आते हैं कि आप अपना लोगो अपलोड करो, आप अपने कंपनी के बारे में बताओ, वेबसाइट डालो, सॉरी, ये सारे आपको ऑप्शंस आते हैं। और फिर चैनल के बारे में, जो आप यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रहे हो उसके बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन डालना होता है, बिकॉज दीज इंफॉर्मेशन आर मेंट पब्लिक, these informations are publicly available, so you have to provide public informations whatever you want to publish, because these will be visible, right? उसी तरह से आपको वीडियोस आप कनेक्ट कर सकते हो और फिर वीडियोस के प्लेलिस्ट बना सकते हो। these are the processes that we can do in the practice session as well। ठीक है, तो आप जब ये सारी चीजें कर लेते हो, तो जैसे अभी लेक्चर हमारा खत्म होता है, मैं उसको एक वीडियो क्रिएट होता है, रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो क्रिएट होगा, एंड देन आई अपलोड ऑन द यूट्यूब चैनल एंड शेयर यू द लिंक। सिमिलरली आप अपने किसी भी वीडियो को यूट्यूब चैनल पे अपलोड करके ओपन लिंक भी शेयर कर सकते हो, विच विल बी व्यूड बाय पीपल जो सर्च करके भी पहुंच सकते हैं। अदरवाइज इनविजिबल लिंक भी हो सकता है कि इफ यू आर शेयरिंग दैट लिंक टू समवन, देन ओनली समवन विल बी एबल टू सी इट, अदरवाइज ऐसे नहीं पता चलेगा, गूगल के सर्च रिजल्ट में वो नहीं आता है, राइट? और आप अगर नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए है चैनल तो वो बताइए, फॉर प्रॉफिट है तो वो बताइए, तो ये सारे थोड़े से फॉर्मेलिटीज होती हैं, राइट? सो डोंट वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स, we'll discuss it sometimes later, so I'm stopping it, but we will go on to LinkedIn marketing part, which is also very important, right? तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि LinkedIn पे कैसे कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा YouTube चैनल के बारे में मैंने बताया आपको। अब हम देखेंगे कि LinkedIn पे मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। तो आप देखिए कि B2B प्लान्स के अगर बारे में बोले तो LinkedIn एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यूज बिजनेस टू बिजनेस के लिए LinkedIn को यूज किया जाता है रादर देन एनी अदर प्लेटफॉर्म। ओके, अगर हम ग्लोबल लेवल पे अगर हम नंबर्स की बात करें तो इफ यू सी मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज हैव मोर नंबर ऑफ LinkedIn प्रोफाइल यूजर्स रादर देन नॉन डेवलप्ड कंट्रीज और अनडेवलप्ड कंट्रीज और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज एंड ऑल। अब B2B मार्केटिंग के लिए LinkedIn को एडवांटेज क्या क्यों मिला हुआ है और LinkedIn कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो आप देखोगे कि ये जितने स्क्रीन्स बने हुए हैं, जितने इमेजेस हैं, ब्लू कलर का जो आइकॉन है दैट इज मेंट फॉर B2B बिजनेसेस।
सो लिंक्डइन पे B2B बिजनेस ज्यादा होता है, B2C बिजनेस बहुत कम होता है। वेयर एज ऑन अ फेसबुक B2B भी होता है लेकिन B2C बहुत ज्यादा होता है। ट्विटर में B2B ज्यादा होता है, B2C कम होता है, ठीक है। और यूट्यूब में ऑलमोस्ट एट द पार, राइट। तो इसी तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग बिजनेसेस होते हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट मेजरली अबाउट B2B बिजनेसेस, लिंक्डइन इज मोर स्ट्रॉन्गर, राइट। अब आप ये देखिए कि B2B के अंदर सोशल मीडिया पे होता क्या है कि अगर हम लिंक्डइन की बात करते हैं तो लिंक्डइन जो है 64% ऑफ ऑल विजिट्स फ्रॉम सोशल मीडिया चैनल्स, कॉर्पोरेट हाउसेस जो हैं, जो कॉर्पोरेट वेबसाइट्स पे जो लोग पहुंचते हैं वो लिंक्डइन प्रोफाइल से पहुंचते हैं, राइट। सो पीपल हु आर एक्चुअली सर्चिंग अदर पीपल और अदर स्किल होल्डर्स ऑन लिंक्डइन, वो लोग आपकी वेबसाइट पे भी जाएंगे, आपकी कंपनी की वेबसाइट पे भी आपके प्रोफाइल की तरफ से जाते हैं, राइट। उसी तरह से आप ये देखेंगे कि जो लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं स्पेशली फॉर B2B, दे डोंट क्लिक ऑन, दे डोंट गो फॉर योर फेसबुक आईडी, बट वो आपकी कंपनी के वेबसाइट, आपके पर्सनल वेबसाइट या फिर आपके कनेक्शंस या आपके पोस्टिंग्स को ज्यादा रिव्यू करते हैं बनस्पत इन कंपैरिजन टू एनी अदर सोशल मीडिया चैनल्स, राइट। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप अपने कनेक्शंस के अंदर या लोगों को जब सर्च कर रहे हैं तो आपको 3 लेवल्स पे सर्च कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल वो होता है जो कि डायरेक्टली आपसे कनेक्टेड है। सेकेंड लेवल ये होता है कि जो आपके कनेक्शन से कनेक्टेड है। थर्ड लेवल ये होता है, वो होते हैं जो आपके कनेक्शन से भी कनेक्टेड नहीं है बट समहाउ दे आर अवेलेबल एंड दे ओनली एक्सेप्ट इन्विटेशंस और वांट टू बी कॉन्टैक्टेड हु नो देम पर्सनली, ठीक है। तो ये आपको वेरियस ऑप्शंस रहता है। तो जिन लोगों के ईमेल आईडीज आपके पास होंगे, यू कैन एक्चुअली अप्रोच देम। इफ यू आर नॉट हैविंग, still you get a chance to connect with them provided they made it open. As a marketing strategy अगर देखें तो इसके अंदर क्या होता है, एड कैंपेन्स भी किए जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, रिक्रूटमेंट के लिए हैं, बिजनेस लीड्स आप जनरेट कर सकते हैं, ये जॉब इंडस्ट्री के लिए है, प्रोक्योरमेंट मैनेजर्स आर यूजिंग अ लॉट लिंक्डइन प्रोफाइल को ज्यादा यूज करते हैं प्रोक्योरमेंट मैनेजर्स या बिजनेस हेड्स टू रीच डिसीजन मेकर्स, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब आप लिंक्डइन के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो आपको क्या करना होता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सबसे पहली चीज ये होती है कि यू क्रिएटेड योर लिंक्डइन प्रोफाइल एंड देन यू स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ ऑन वेरियस लिंक्डइन ग्रुप्स, पार्टिसिपेट इन डिस्कशंस। जैसे लिंक्डइन के ऊपर बहुत ही बिजनेस नेटवर्किंग ग्रुप्स होते हैं, आप वहां पे ज्वाइन करिए और वहां पे डिस्कशन में पार्टिसिपेट करिए। इफ समवन हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन, यू ट्राई टू आंसर इट, राइट, and search for connections. If you see that someone is right person for you or maybe interested in your business with you, आप उससे connect हो सकते हैं and it will be easy for you because both of you are from one particular business group, right? उसी तरह से common interest क्या है वो identify कीजिए, फिर उनके details को identify कीजिए, उनके email IDs और उनके website को identify करके उन तक आप approach कर सकते हैं, right? और फिर उनसे questions पूछ सकते हैं। आप लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव रह सकते हैं, कोई नई नई चीजें, नए नए आर्टिकल्स, नए नए बिजनेस के बारे में आप इंफॉर्मेशन पोस्ट कर सकते हैं, आप आर्टिकल्स पोस्ट कर सकते हैं। और इन सारी चीजों के साथ मोर एक्टिव यू आर ऑन लिंक्डइन, देयर आर पॉसिबिलिटी दैट यू विल बी एबल टू गेट मोर बिजनेसेस ऑन लिंक्डइन। सो फ्यू स्टेप्स। सबसे पहला, ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल। सेकेंड इज engage yourself. Third is take advantages of advertising options. And then get connected, give them what they want. मतलब जो आपके कनेक्शन, सामने वाला आदमी जो बिजनेस आपसे सीख कर रहा है या एम्प्लॉयमेंट जो भी है, try to provide them the information what they are looking at. तो अगर ये आप कर रहे हैं तो आप अपने लिंक्डइन को यूज करते हुए अच्छे लेवल पे कनेक्ट हो सकते हैं। अब मैं आपको ये थोड़ा सा बताता हूँ कि कैसे आप प्रैक्टिकली लिंक्डइन पे अपने इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं या इन चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। Just allow me a sec, I'll provide you those access. Sir, in the meanwhile, can I ask a question? Yeah, sure. Sir, what happened is I have 2 LinkedIn profiles, okay, and I want to delete one permanently. Is that possible? Yeah, that is possible. You get an option to delete your account permanently. आप सेटिंग्स में जाके जब देखोगे
तो वहां पे आपको आता है डिलीट दिस अकाउंट परमानेंटली, और यू ऑल्सो गेट एन ऑप्शन मर्ज दिस प्रोफाइल विद वन ऑफ अनदर प्रोफाइल। Okay. तो आप जब अपने जिस प्रोफाइल को आप रिटेन करना चाहते हो उस प्रोफाइल का आप डिटेल वहां पे दोगे। सो जो ये एग्जिस्टिंग प्रोफाइल होगा जिसको आप डिलीट करना चाहते हो, दीज इंफॉर्मेशन विल गेट मर्ज्ड विद दैट एंड देन यू कैन डिलीट दिस। और अगर आप ऐसे ही डिलीट करना चाहते हो तो आप ऐसे भी डिलीट कर सकते हो। Okay, sir. I'll try. राइट, सो आर यू गाइज एबल टू सी माई लिंक्डइन प्रोफाइल? Yes, sir. राइट, तो अब देखो यहाँ पे, जैसा यहाँ पे कहा जा रहा था कि आपको ऑप्शन आता है कि आप क्या क्या चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे पेन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं इस जो टाइगर है इसका जो है मैं इमेज चेंज करना चाहूँ तो मेरे को ऑप्शन आ जाता है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे चेंज नहीं करना, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आता है, आप चेंज फोटोग्राफ पे क्लिक करोगे या डिलीट फोटोग्राफ पे क्लिक करोगे तो आपका ये फोटोग्राफ डिलीट हो जाएगा। चेंज फोटोग्राफ पे क्लिक करोगे तो यू कैन अपलोड अनदर फोटोग्राफ ओवर हेयर। मैं कुछ भी नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ से आपको जो आपका लिंक्डइन का जो कवर है उसको आप चेंज कर सकते हो। उसी तरह से अगर मैं चाहूँ इसको चेंज करने का, मेरा अपना प्रोफाइल पिक चेंज करने का, आई कैन एडिट इट, आई कैन ऐड फोटोग्राफ, आई कैन डिलीट दिस फोटोग्राफ एंड अपलोड सम अदर फोटोग्राफ। ठीक है, अब आपको ये आता है कि जैसे मैंने कहा कि उसके बाद आपको ये है कि भाई आप अपने कंटेंट को, आपका जो हेडलाइंस है उसको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहाँ पे एक पेन का ऑप्शन आ रहा है, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा ये मेरे से पूछ रहा है कि आप अपना ये चेंज करना चाह रहे हैं, क्या चेंज करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा नाम है, उसके बाद मैंने इस तरह से लगा रखा है। अगर मैं चाहूँ तो कुछ और भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा हेडलाइन है, यहाँ पे भी अगर मैं कुछ भी चेंज करूँ तो ये चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप देखो यहाँ पे मैंने XX मैंने डाला है और इसको मैं सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरी कंपनी के आगे क्या आ गया, XX लिखा हुआ आ गया है, दिख रहा है, मैंने हाईलाइट कर रखा है, isn't it? So what I can do, I can edit it, but since it is a company profile, so I'm not going to edit that. Okay, so I have saved it. All right, तो इस तरह से आप यहाँ पर जाके आप अपने सारे इंफॉर्मेशन को आप चेंज कर सकते हो। ओके, अगर आपको कुछ और सेक्शंस ऐड करने हैं, जैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर अगर गए तो आप देखिएगा कि लिंक्डइन का प्रोफाइल है, फिर हमारी कंपनी का वेबसाइट है, ये पर्सनल वेबसाइट है, ये मेरा फोन नंबर है, ये ईमेल आईडी है, ट्विटर अकाउंट है, ये मेरा इंस्टेंट मैसेंजर है, स्काइप का आईडी है और मेरा बर्थडे है। राइट, तो ये सारे इंफॉर्मेशन कहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ये कॉन्टैक्ट इन्फो में अवेलेबल होते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ और सेक्शन ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ओके, उसी तरह से यहाँ पे प्रोवाइड सर्विस का एक ऑप्शन है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये क्या होता है, ये एडिटिंग ऑप्शन में चला जाता है। मैं जितने भी यहाँ पे चाहूँ सर्विसेज के नाम ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं देखूँ ट्रेनिंग अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ट्रेनिंग को ऐड कर सकता हूँ। ओके, ऑलराइट, तो आप जो है जो मैंने एडिट किया है, जो मैंने ये किया है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ट्रेनिंग आ गया। राइट, तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, अदरवाइज मैं जो है इसको फिर से मैं एडिट कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ। ओके, आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग बिकॉज इट विल अफेक्ट माई प्रोफाइल। ओके, तो इस तरह से कहाँ पे है, ये हैदराबाद में है, अवेलेबल रिमोट और इन पर्सन, बोथ वेज आई एम अवेलेबल। ओके, सो दिस इज हाउ आई कैन एडिट इट। अब मैं और भी आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से और भी हम प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट सर्विसेज। ठीक है, तो ये सर्विसेज, ठीक है, हु कैन सी इट, एनीवन कैन सी इट। अगर मैं चाहूँ तो इसको अनपब्लिश भी कर सकता हूँ, in the sense whatever the services that I have listed over at the top, I can unpublish it, in the sense no one will be able to see that I am providing those services. Okay, तो ये आपका ये ऑप्शन हो गया। और इसके बाद आप फिर जब आप आगे की तरफ आप जब बढ़ेंगे तो आपको और भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे कि जो कि आप चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये सर्विसेज का हो गया।
ठीक है। उसके बाद आपको जैसे मैंने बताया कि आप अबाउट, आप अपने बारे में अबाउट लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक अबाउट के बारे में आपको 200-300 वर्ड्स का आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आप बुलेटेड फॉर्मेट में या जैसे भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो हैव अपडेटेड ओवर हेयर, ठीक है। तो ये हमारा अबाउट अस हो गया। उसके बाद फीचर्स हैं, या फिर अगर मैंने कोई आर्टिकल लिया, जैसे मैंने कहा कि आप कोई आर्टिकल, कोई टॉपिक, कोई कंटेंट, कुछ और चीज आप अपलोड करना चाहें तो आप अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप जो भी यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन आ रहा है कि आप चाहें तो और कोई कंटेंट ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ऐड का करेंगे तो ये पूछता है ये पोस्ट होगा, आर्टिकल होगा, लिंक होगा, मीडिया इन द सेंस इमेजेस है या यूट्यूब है, क्या होगा, ठीक है। और अगर आप ये जो पोस्टेड चीजें हैं इसको अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो यू गेट एन ऑप्शन कि आप कुछ भी डिलीट करना चाहो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा। मैं इसको चाहूँ तो क्लिक करके डिलीट कर सकता हूँ, इसको चाहूँ तो क्लिक करके डिलीट कर सकता हूँ। ओके, तो दिस इज हाउ आई कैन एडिट माई प्रोफाइल। उसके बाद जब हम नीचे जाते हैं तो आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या है, एक्सपीरियंस आ रहा है, जहाँ मेरी कंपनी का नाम है, मैं क्या कर रहा हूँ, कब से इस कंपनी के साथ अटैच हूँ, एट ए टाइम मैं किसी और कंपनी या किसी और पोजीशन पे हूँ। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे भी आप लिखा हुआ आ रहा है दिसंबर 2022 प्रेजेंट आई एम विद दिस कंपनी। फिर दूसरी एक और कंपनी है उसके साथ है, एक मेरा अपना ट्रेनिंग का इनिशिएटिव है उसके साथ है। उससे पहले मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर था और भी किस कंपनी के लिए क्या था। यहाँ पे ये पूरा का पूरा प्रोफाइल आपके सामने ये लिख के आ जाएगा, राइट। तो अगर मुझे कुछ और ऐड करना है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे ये प्लस का बटन है, ये प्लस का बटन जब क्लिक करेंगे तो हम ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे प्लस का बटन क्लिक किया तो ये ऐड करने के बारे में आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे पेन का बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एडिट करने का ऑप्शन दे देता है। ओके, इस तरह से आप, और यहाँ पे आप जो भी आप अपलोड करना चाहें वो अपलोड कर सकते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये डॉटेड लाइंस हैं, तो अगर मैं चाहूँ तो इसको ऊपर नीचे पुल कर सकता हूँ, यानी फर्स्ट प्रोफाइल ये दिखाना है कि इसके बाद वाला प्रोफाइल मुझे दिखाना है, वो मैं सेट कर सकता हूँ। ओके, इस तरह से आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप अपने प्रोफाइल दिखाएं। फिर उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अपने एजुकेशन और डिग्रीज दिखाएं, जो भी जितने भी आपके एजुकेशन और डिग्रीज हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपने अगर कोई सर्टिफिकेशन लिया है उसको आप मेंशन कर सकते हैं। जितने भी सर्टिफिकेशन हैं जो भी आप चाहें तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हुई। अब जैसे मैंने बताया था कि स्किल्स से रिलेटेड है, ऐड ए न्यू स्किल, आप चाहें तो यहाँ पे स्किल ऐड कर सकते हैं या फिर टेक ए स्किल क्विज। जब स्किल से रिलेटेड क्विज आप लेंगे तो लिंक्डइन आपको बताएगा कि आप क्वालिफाई करते हैं इस पर्टिकुलर स्किल के लिए या नहीं। तो अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा कि जैसे आप देखेंगे कि स्किल्स, मैंने इतने सारे स्किल्स मैंने ऐड कर रखे हैं और इसके बगल में जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं इसका मतलब ये है कि इतने लोगों ने मेरे को इस पर्टिकुलर स्किल के लिए इंडोर्स किया है। आप देख सकते हैं किन किन लोगों ने मुझे इस पर्टिकुलर स्किल के लिए इंडोर्स किया है, उसका पूरा का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा कि कौन कौन लोगों ने इंडोर्स किया है। ओके, तो इस तरह से जब, और ये जेन्युइनली इंडोर्स होता है तो इसलिए कोई इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता एंड इट क्रिएट्स इम्पैक्ट, राइट। कहीं पे मैनेजमेंट से रिलेटेड है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, टीम मैनेजमेंट है, रेपुटेशन मैनेजमेंट है, राइट। तो ये क्या हो गया, ये हमारे स्किल से रिलेटेड हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे रिकमेंडेशंस हैं। समवन हैज रिटन अबाउट मी कि मतलब समवन हैज रिटन अबाउट मी, मेरे कोलीग या मेरे साथ काम करने वाले, मेरे सीनियर्स या मेरे जूनियर्स, उन्होंने मेरे बारे में कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं या मेरे जानने वाले हैं या जिनके लिए मैंने काम किया है, वो लोग यहाँ पे उन्होंने मेरे बारे में यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा है और उस चीज को मैंने एक्सेप्ट किया है, तो ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे अकॉम्प्लिशमेंट्स के अंदर है, जितने भी अवार्ड्स हैं या जितने भी चीजें हैं वो मैं मेंशन कर सकता हूँ, जितने कोर्सेज मैंने किए हैं वो कर सकता हूँ, जिन चीजों में मैं इंटरेस्ट शो करता हूँ वो सारी चीजें यहाँ पे एडेड हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें आपको ऑप्शन देता है कि आप अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सको। जब आप ऑप्टिमाइज कर लेते हो तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जैसा मैंने कहा, either you will get noticed by recruiters
or you will get noticed by business owners so that they will contact you for further level of businesses. अब ये चीज ये हो गया। अब जैसे आपको मैंने बताया कि यहाँ पे आप इसी चीज को अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो सेव टू पीडीएफ कर लेंगे तो ये आपका रिज्यूमे बन जाएगा, ठीक है। या आप इसको शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको क्या होता है, आप अपने प्रोफाइल को मैनेज कर लेते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि अपने प्रोफाइल के यूआरएल को कैसे मैनेज करना है, तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ आ रहा है एडिट प्रोफाइल पब्लिक प्रोफाइल पेज एंड यूआरएल। राइट साइड में जहाँ पे ये पेन का बटन है वहां पे ये लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे रहा है, आप देखिए यहाँ पे जो अभी मेरा करंट है वो दे रहा है। मैं चाहूँ तो इसको एडिट कर सकता हूँ, जो भी मैं लिखूंगा ये चीज एडिट हो जाएगा एंड देन दैट कैन गो एज ए एप्लीकेबल थिंग्स। ओके, वो अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं नहीं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इस चीज को यहीं से हट जाऊंगा कि भाई मुझे नहीं चेंज करना। ओके, अब एज ए व्यू प्रोफाइल करेंगे तो ये फाइनली इस तरह से हमारे सामने आ जाएगा। और आप अब देखिए यहाँ पे कि किन लोगों ने हमारे प्रोफाइल को सर्च किया है वो भी आपको पता चलेगा। जैसे मेरे प्रोफाइल को इन लास्ट सम टाइम 284 लोगों ने देखा है। तो कौन कौन से लोगों ने देखा है वो उसका डिटेल हमको पता चल जाएगा कि इन लोगों ने देखा है। जब मुझे ये पता चल जाएगा कि इन लोगों ने देखा है तो मैं डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सकता हूं, मैं उनके प्रोफाइल को देख सकता हूं, फिर उसके बाद मैं कांटेक्ट कर सकता हूं कि भाई एनीथिंग रिलेटेड टू बिजनेस और व्हाट फॉर दे हैव एक्चुअली सीन माय प्रोफाइल। तो इस तरह से आप अपने प्रोफाइल को भी देख सकते हो, दूसरों के प्रोफाइल को भी देख सकते हो। अब ये जिन लोगों ने भी मेरा पेज देखा है, मैं चाहूँ तो उनके प्रोफाइल को मैं जाके देख सकता हूँ कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने देखा है। तो ये कोई क्लस्टर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के लाइन है, पीओएस पीएनबी मेटलाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। ही माइट बी लुकिंग फॉर सेलिंग ऑप्शंस टू मी, सो ही हैज एक्चुअली सर्च्ड माय प्रोफाइल एंड हैव एक्चुअली लुक्ड एट माय प्रोफाइल। उसी तरह से दूसरों का प्रोफाइल देखना चाहें तो हम दूसरों का प्रोफाइल भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस लेडी हु इज वर्किंग फॉर लॉरेल, ठीक है, उसका अबाउट के बारे में अगर देखना है तो उसके अबाउट के बारे में आप देख सकते हैं, वो क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो कौन से पोजीशन पे है, उससे पहले क्या थी, उसका एजुकेशन लेवल क्या है, उसका स्किल सेट्स क्या है। तो ये सारी चीजें आप दूसरों के भी देख सकते हैं। उसी तरह से लोग आपके भी प्रोफाइल को देख सकते हैं। गॉट माई पॉइंट? कुछ समझ में आया या आज का थोड़ा सा टिपिकल ज्यादा हो गया? नथिंग टू वरी। मैं जो 2 पीडीएफ जो आपको कंटेंट जिससे मैंने आपको बताया है वो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे असाइनमेंट आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग लिंक्डइन पे जिनका प्रोफाइल है तो वो ऑप्टिमाइज करें, जो कि मैंने बताया है आज आप लोगों को। जिनका नहीं है तो वो लिंक्डइन पे जाके अपने प्रोफाइल को क्रिएट करें। कंपनी प्रोफाइल क्रिएट करने की कोशिश ना करें, सबसे पहले अपने प्रोफाइल को अपडेट कर लें। ओके सर, हाँ, linking.com में जाके चुनना पड़ेगा। हाँ, linkedin.com में। ओके सर, ठीक है, ट्विटर वाला twitter.com। हाँ, twitter.com, instagram.com, facebook.com, सब .com। ओके सर। ठीक है, ऑल राइट गाइज। Hello, sir. हाँ सर, Actually, today I could not do the whole class नो properly. प्रॉब्लम सर। वीडियो रिकॉर्डिंग हाँ, आ ठीक। जाएगा, आप देख लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। Yes. चलिए, ऑल राइट गाइज, सी यू देन टुमारो। टेक केयर, Okay, thank you, sir. थैंक यू। ओके सर। Okay, sir.